Greeting dear students. I hope all of you are fit and fine. In this module, we will start a new chapter, acids, bases and salts. So, all of you are already aware about the basic terms acids, bases and salts. So, generally हम acid किसको बुलाते हैं? There are number of concepts related to the definition of acids, bases and salts. But the most simplest of all, which is the classical concept, कि acids are those substances which are sour in taste. कि generally जिसको हम acid बुलाते हैं वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं taste में. Bases are those substances which are generally bitter in taste. This is the obsolete concept now because आप ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं और खट्टा है या कड़वा है. This is not the correct way to identify whether a substance is acid or base because tasting a substance can be dangerous because the substance can be either poisonous. तो ये तो हो नहीं सकता ना कि हम हर एक चीज को टेस्ट करके देखें. So from where this concept came कि acid जो होते हैं sour in taste होते हैं, bases जो होते हैं bitter in taste होते हैं, because the substances which we generally obtain from the nature. The simplest example is the lemon juice. कि नींबू जो है उसमें से जो जूस निकलता है which is sour in taste. इमली है, tamarind है, it is sour in taste. तो जो चीजें सोर होती थी टेस्ट में वहीं से ये वर्ड आया है एसिड, एसिडस, जिसका मतलब क्या होता है? सोर इन टेस्ट. सो दैट्स हाउ दिस कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट came out about the substances which are acidic in nature, which are sour in taste, and substances which are bitter in taste. For example, the soap, washing soda, and caustic soda, which are generally bitter in taste. तो वहां से ये कंसेप्ट आए हैं कि नेचर से जो हमको सब्सटेंसेस मिलते थे उनमें से कौन से सोर होते थे, कौन से बिटर होते थे. ऑन दैट बेसिस साइंटिस्ट क्लासिफाइड द सब्सटेंसेस इनटू टू कैटेगरीज, एसिडिक एंड बेसिक. So there is one more category of substances which does not belong to any of these two categories. ना तो acid है ना ही base है, and those substances are considered neutral. So generally if we want to classify the substance based upon this nature कि substances क्या क्या हो सकते हैं, they may be either acidic, basic और न्यूट्रल, कि तीनों में से कोई भी नेचर वो सब्सटेंस क्या कर सकता है? शो कर सकता है. तो आई होप दिस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट इज सोल्ट. सो हाउ सोल्ट्स आर फॉर्म? द सिंपलेस्ट मीनिंग और सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सोल्ट्स आर सोल्ट्स विच आर फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. कि जब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोल्ट. The most common misconception about you people is you always consider there is only one salt, कि हमेशा यही सोचते हो कि एक ही salt होता है. If I am writing salt, it doesn't mean it is only the common salt which we eat. कि जो हम नमक खाते हैं सिर्फ वही salt नहीं होता है. Salt is the broad term कि बहुत सारे acidic substances होते हैं, बहुत सारे बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस ए न्यू केमिकल कंपाउंड एंड दे आर कॉल्ड सोल्ट. तो सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द सोल्ट. तो दिस इज द डिफरेंस कि अगर मैं बोल रहा हूँ कॉमन सोल्ट देन इट इज एग्जैक्टली सोडियम क्लोराइड. इफ आई एम सेइंग सोल्ट, तो सोल्ट कैन बी आइदर पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैन बी एनीथिंग. सो फॉर एग्जाम्पल दिस सोडियम क्लोराइड, it is formed by reaction between the sodium hydroxide which is a base, reaction with the acid HCl, both combine together to produce sodium chloride plus water. So the simplest example, one of the widely used acid is HCl, hydrochloric acid. caustic soda और sodium hydroxide is a strong base. तो वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड और वाटर. तो सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है. HCl क्या है? एसिड है. और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर. एज यू कैन सी हियर दिस इज नॉट द सोडियम क्लोराइड, लेकिन ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो है सोल्ट. तो सिर्फ ये मतलब नहीं है कि भाई कोई भी चीज है हम जब भी बोल रहे हैं तो सोल्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड की. सो बी केयरफुल अबाउट दिस. इफ आई एम सेइंग कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट मतलब जो हमको इजीली यूज होता है और हम ज्यादातर यूज करते हैं, दैट इज स्पेसिफिकली सोडियम क्लोराइड. बट देयर आर नंबर ऑफ सोल्ट्स दैट एग्जिस्ट इन द नेचर. So
The detail of acid, base and salt we will discuss in the we will discuss later in next few modules. In this module we will discuss about how we can differentiate. I have told you ना कि this is not the best way to taste the substance, कि हम हर बार हम substance को, salt को, compound को taste करके तो नहीं देख सकते ना. It can be either poisonous हो सकता है. तो what is the best way to identify whether a substance is acidic or basic? So best way to identify whether a substance is acidic, basic and neutral. So that can be identified by using the indicator. As the name suggests, indicator. Similar to that indicator which we use in our automobile, कि गाड़ी के अंदर है, एक्टिवा वगैरह स्कूटर के अंदर है, बाइक के अंदर है. What is the role of indicator? Indicator हमको क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आगे वाला जो व्हीकल है या हम जो व्हीकल चला रहे हैं, इट इज आइदर मूविंग इन लेफ्ट साइड और राइट साइड. इट हेल्प इन फाइंडिंग द डायरेक्शन कि जो व्हीकल चल रहा है वो लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, या हम लेफ्ट में जा रहे हैं या राइट में जा रहे हैं. सो दैट इंडिकेटर इंडिकेट द डायरेक्शन. इन दिस केस what we are doing, we are identifying whether the substance is acidic or basic. Acid है या basic है, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर. So there are number of indicators that can help us to identify whether a substance is acidic, basic or neutral. So in this module we will discuss about few of the acid base indicators. If we want to classify these indicators, if we want to define the indicator are certain chemical substances which help us to identify whether a substance is acidic, basic or neutral. So there are number of indicators that work on different principles. For example, I have written color change, कि कई ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिसमें क्या होता है, विजिबल कलर चेंज होता है कि हमको देख के पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें कलर चेंजेस आते हैं. देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जिसमें कलर चेंज नहीं होगा. यू कैन सी दी डिफरेंट ऑर्डर की, ऑर्डर जो है, स्मेल जो है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी. So there are number of ways by which we can identify whether a substance is acidic, basic or neutral. And for the acidic condition I am taking A, for the basic condition I am taking B, and for the neutral condition I am taking N. So don't be confused in this. So first, if we want to broadly classify them, first is natural indicator, second is synthetic indicator. So natural indicator, as the name suggests, that we obtain from the nature. Synthetic indicator that are generally synthesized in the lab, कि लैब वगैरह के अंदर हम बनाते हैं उनको और यूज करते हैं. दिस फर्स्ट टू कैटेगरी, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कलर चेंज. कि इनके अंदर क्या होगा, अलग अलग कंडीशन के अंदर विजिबल एक कलर चेंज होगा. लास्ट कैटेगरी इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर. ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन ऑर्डर, मींस देयर विल बी अ चेंज इन स्मेल, स्मेल चेंज हो जाएगी. तो एग्जांपल्स ओनियन, वेलिना, क्लोव. As you can see here, they are also the natural substances. So this you can also write under the category of natural indicator, because वो सब क्या है, natural substances हैं. So we will start with the first natural indicator. As you can see here, I have already written few of the examples of natural indicators. First is litmus, turmeric, red cabbage extract, and there are few of the colored petals of flowers like, petals mean जो flower की पत्तियां होती हैं, colored petals of flower like petunia, hydrangea and geranium. ये सारे के सारे क्या होते हैं, अलग अलग कलर देते हैं अलग अलग कंडीशन के अंदर. तो विल स्टार्ट फ्रॉम द लिटमस. तो लिटमस जो होता है ना, द सोर्स ऑफ लिटमस, फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द सोर्स ऑफ litmus. The source of litmus is lichens. It is a type of seaweed. सी के अंदर एक प्लांट होता है, लाइकेंस है, ठीक है. लाइकेंस को निकालते हैं, उसको वाटर के अंदर अच्छे से बॉईल करते हैं. बॉईल करने के बाद हमारे पास एक क्या आ जाता है, एक्सट्रैक्ट आ जाता है. यू शुड अवेयर अबाउट दिस टर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ extract? I have already written here, red cabbage extract. So what is this extract? Extract हम कैसे निकालते हैं? We generally take a solvent. For example, in case of litmus, we can take the water. वो जो हमारा प्लांट होता है, लाइकेंस जो होते हैं,
इसको लेते हैं, इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और वाटर के अंदर अच्छे से बॉईल करते हैं। एज ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर, वाटर इज न्यूट्रल, तो लिटमस का एक सोल्यूशन आ जाता है उसके अंदर। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय के अंदर हम क्या करते हैं, टी लीव पत्ती डालते हैं, पानी के अंदर अच्छे से बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, टी लीव्स का एक्सट्रैक्ट आ जाता है। तो सेम वे दिस लिटमस इज प्रिपेयर्ड। तो लिटमस कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म, लिटमस सोल्यूशन और लिटमस पेपर। इन केस ऑफ लिटमस सोल्यूशन वी विल यूज द लिक्विड सोल्यूशन। लिटमस पेपर हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप्स लेते हैं, उनको एक पर्टिकुलर शेप में कट कर लेते हैं और इनको हम क्या करते हैं, लिटमस सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। लिटमस सोल्यूशन में डिप करने के बाद वो क्या बन जाते हैं, लिटमस पेपर। तो litmus solution or litmus paper, in both the cases the color change will remain same. For example, in case of litmus, तो litmus के केस में क्या होगा, acidic, basic and neutral. So acidic condition, basic condition और neutral condition. So in neutral condition it will be purple in color. Now the confusion that स्टूडेंट गेट कंफ्यूज इन कि हमको याद ही नहीं रहता है कि कौन से केस में कौन सा कलर चेंज होगा। कि दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, और यू कैन से द रेड लिटमस सोल्यूशन और ब्लू लिटमस सोल्यूशन। अब लर्न कैसे करें कि कौन से केस में एसिडिक कंडीशन में या बेसिक कंडीशन में कौन सा कलर चेंज होगा। यू शुड अवेयर अबाउट द स्पेलिंग। एसिड स्टार्ट विद द ए, तो दो ही लिटमस पेपर हैं अल्फाबेटिकली। ए के बाद क्या आता है, बी, फर्स्ट लेटर ए के बाद क्या आएगा, बी, तो ब्लू टू रेड। So in acidic condition the litmus solution will become red. In basic condition, बेस एक लर्न कर लो, सेकंड इज एग्जैक्टली अपोजिट। ए फॉर एसिड, ए के बाद अल्फाबेटिकली क्या आता है, ब्लू, बी, तो बी से क्या हो गया, ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इनटू रेड, एंड इन एसिडिक कंडीशन द रेड विल चेंज इनटू ब्लू। सो आई होप द कलर चेंज इज क्लियर टू एवरीवन फॉर द लिटमस पेपर कि ए फॉर एसिड और ए के बाद अल्फाबेटिकली क्या आता है, बी, तो बी से क्या हो जाएगा, ब्लू, ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इनटू रेड। यू कैन रन दी वन ट्रिक, एक ट्रिक याद रखो, दूसरा एग्जैक्टली अपोजिट है कि बी फॉर बेस, तो वो बी तो आएगा नहीं वापस उसके बाद, तो क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू। सो दैट्स हाउ कलर चेंज will help us to identify with the help of either litmus solution or litmus paper कि whether a substance is acidic, basic or neutral. Next is turmeric. Turmeric is the most common natural substance that exists in the nature and which we also use at our home. तो हल्दी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, सब्जी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं कि चोट लग गई तो उसको हम डाल के दे रहे हैं। So all of you are aware about the color of turmeric. हल्दी का कलर सभी को पता है, कौन सा कलर होता है, नेचुरल, येलो। इफ वी कैन राइट एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सो एसिडिक कंडीशन में कलर क्या रहने वाला है, येलो। न्यूट्रल कंडीशन में कलर क्या रहने वाला है, येलो, और बेसिक कंडीशन में कलर क्या रहने वाला है, रेड। तो ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस है ना, दे जनरली चेंज इट्स कलर और ऑर्डर अंडर बेसिक कंडीशन की। जनरली वो बेसिक कंडीशन के अंदर अपने कलर को या ऑर्डर को चेंज करते हैं। दिस इज दी ट्रिक टू लर्न कि बेसिक सब्सटेंसेस के साथ क्या होता है। एक्सेप्शन इज लिटमस। लिटमस तीनों में अलग अलग कलर देता है। सो टर्मरिक, so this turmeric can be question on turmeric can be asked in different manner. तो आप घर पे खुद भी एक्टिविटी करके देख सकते हो। टेक ए व्हाइट हैंकी, व्हाइट हैंकी के ऊपर क्या करो, आप थोड़ी सी टर्मरिक लगाओ, या जो सब्जी वगैरह बनाई जिसमें टर्मरिक डाला हुआ उसको आप थोड़ा सा लगाओ। कि खाना खाते हुए कई बार हमारे कपड़ों पे लग जाती है, तो उसके बाद क्या करना है, उसको वाटर के अंदर डिप करो हैंकी को जिसके ऊपर आपका टर्मरिक का स्टेन लगा हुआ है। डिप इट इनटू द वाटर एंड देन अप्लाई सोप, उसके ऊपर साबुन लगाओ। तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे जैसे whenever as soon as you apply the
सोप सोल्यूशन और उसके ऊपर आप लगाओगे तो द कलर ऑफ टर्मरिक विल चेंज इनटू द रेड बिकॉज द सोप्स आर बेसिक इन नेचर। कि जो साबुन हमने लगाया है वो बेसिक नेचर का होता है और उसको जब हम उसके ऊपर लगाते हैं स्टेन के ऊपर, क्योंकि उस पर क्या होती है टर्मरिक, बेसिक सब्सटेंसेस टर्मरिक के कलर को येलो से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड के अंदर। द स्टेन विल बिकम रेड। लेकिन आप उसको बार बार वॉश करोगे तो जब स्टेन नहीं हटाया तो फिर इट विल अगेन बिकम येलो। सो अंडर एसिडिक कंडीशन येलो, अंडर न्यूट्रल कंडीशन येलो, अंडर बेसिक कंडीशन विल बिकम रेड। So I hope the activity related to the turmeric is clear to everyone. Next is red cabbage extract, पत्ता गोभी जिसको हम बोलते हैं, एक रेड कलर की आती है, उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं, वाटर में बॉईल करते हैं, एक रेड कलर का सोल्यूशन आ जाता है। सो दिस रेड कैबेज एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। तो एसिडिक और न्यूट्रल में तो वो क्या रहता है, रेड ही रहता है। इन बेसिक कंडीशन इट विल बिकम ग्रीन। तो आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अंडर एसिडिक कंडीशन एंड न्यूट्रल इट इज रेड, अंडर बेसिक कंडीशन इट विल बिकम ग्रीन। सो देर आर ऑल्सो नंबर ऑफ अदर विजिबल इंडिकेटर, और जिसमें कलर चेंज होता है, बहुत सारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर लाइक पेट्यूनिया, हाइड्रेनिकिया एंड जेरेनियम। तो ये भी क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, बट बी केयरफुल ओनली अंडर द बेसिक कंडीशन। एसिडिक और न्यूट्रल में तो उनका कलर सेम ही रहता है, बट अंडर द बेसिक कंडीशन दे विल चेंज इट्स कलर। So we can easily identify कि whether a substance is acidic, basic or neutral. So I hope these of the natural indicators are clear to everyone. Litmus, turmeric, red cabbage extract and the colored petals of few of the species. Next is synthetic indicator. तो synthetic indicator में क्या होता है कि उसको हम लैब के अंदर बनाते हैं. So here we are only discussing two of the natural indicator, phenolphthalein and methyl orange. So phenolphthalein, acidic, न्यूट्रल एंड बेसिक। तो एसिडिक और न्यूट्रल में वो क्या रहता है, कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं होगा, वाटर की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। अंडर बेसिक कंडीशन इट विल बिकम थिक। सो आई होप दिस कलर चेंज इज क्लियर टू एवरीवन। phenolphthalein अंडर एसिडिक एंड न्यूट्रल कंडीशन कलरलेस, अंडर बेसिक कंडीशन इट विल बिकम पिंक। नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अंडर न्यूट्रल ऑरेंज, एसिडिक रेड, बेसिक येलो। कि कोई भी चीज बेसिक होगी अगर उसमें मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो कलर क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। अंडर एसिडिक कंडीशन रेड आ जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन ऑरेंज आ जाएगा। नेक्स्ट इज olfactory indicator, there will be a change in smell. फॉर एग्जाम्पल ओनियन, सिरके वाले प्याज सभी ने खाए होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिरका क्या होता है, विनेगर। विनेगर क्या होता है, एसिडिक सब्सटेंस। तो उसको हम उसके अंदर डाल देते हैं तो उससे ये नहीं होता कि उसकी स्मेल चली जाएगी। सो अंडर एसिडिक कंडीशन द स्मेल ऑफ ओनियन विल रिमेन देयर। अंडर न्यूट्रल, पानी में डालोगे तो भी स्मेल नहीं जाती, पानी क्या होता है, न्यूट्रल। सो अंडर न्यूट्रल कंडीशन द स्मेल ऑफ ओनियन विल रिमेन देयर, बट व्हेन यू पुट द ओनियन into the basic substances, for example if you put the onion into the soap solution, तो वो हम करते नहीं है, खाने के लिए नहीं, आप चेक करने के लिए कर सकते हो। you can put the onion into the baking soda, मीठा सोडा जिसको बुलाते हैं, उसका सोल्यूशन बना के उसमें डाल दो, उसकी स्मेल डिसअपियर हो जाएगी। सिमिलरली वनीला, वनीला आइसक्रीम सभी ने खाई है, वनीला एक्सट्रैक्ट है, वनीला टॉफीज आती हैं, तो फ्लेवर है, एक्सट्रैक्ट वनीला प्लांट होता है उससे हम निकालते हैं। तो सेम इन केस ऑफ वनीला, under acidic condition, under basic condition the smell will remain. Don't write the term smell, you can write the proper word odor. So odor will remain there. Smell तो हम जनरली गंदी चीजों के लिए यूज करते हैं। So vanilla odor will remain there under acidic condition और neutral। acidic और neutral में जो वनीला का एसेंस है, स्मेल जो है, odor जो है वो रहेगी, बट अंडर बेसिक कंडीशन इट विल डिसअपियर। सेम इन केस ऑफ क्लोव ऑयल, लौंग जिसको बोलते हैं, कुछ लोग चाय के अंदर में भी डालते हैं। So this clove oil, its smell also disappear under the basic condition. So maximum number of natural indicator shows the color change. In this case, disappearance of odor under the basic condition. Acidic और neutral में generally वो as such रहते हैं, exception I have already written here, litmus। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो neutral में कलर चेंज करते हैं, बट फॉर दिस यू कैन लर्न ट्रिक की ज्यादातर बेसिक कंडीशन में अपनी
प्रॉपर्टी को वो चेंज करते हैं, आइदर कलर चेंज और आइदर ऑर्डर चेंज. So I hope this basic introduction of acid, base and salt, and the main topic is acid base indicator, कि how we can differentiate whether a substance is acidic, basic or neutral. Neutral mean ना तो acidic है ना basic है. Example is water. So how we can differentiate the substances based upon their character, based upon their nature, acid base indicator. If you still have any doubt related to any of the indicator or any of the topic of this module, you can ask in the comment section. So thank you students.